Hello students, good morning. Students, today is 24th November 2020. Your chapter 11 time, speed and temperature was going on. In the last class I have started worksheet. In this I have finished section A, and in B part I have solved question number 1. So today I want to continue from question number 2. Here it has been given solve. A part has been given 4 minutes 52 seconds plus 3 minutes 12 seconds. So look here, how can you solve it? Here you will write 4 minutes 52 second plus 3 minute 12 seconds. Okay, so look here, how can you solve? First you will transfer minute one side and second one side. So here 4 minute plus 3 minute, then after that 52 seconds and 12 seconds. So now you will add it, 4 plus 3 7 minute plus, here when you will add 52 seconds and 12 seconds, then you will got 64 seconds. Okay, and students, you know about that in 1 minute 60 seconds, 1 minute is equal to 60 seconds. So you will regroup here. So here you will add regroup 60 seconds as के बाद 60 seconds is equal to, you can tell about that 1 minute plus 4 seconds, बिकॉज 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. सो हमने 1 मिनट को अलग कर दिया, 60 सेकंड आपके ये अलग हो गए. सो रिमेनिंग सेकंड्स आर 4 सेकंड्स. सो हियर यू कैन राइट अबाउट इट 7 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 4 seconds. So now minute is similar. So 7 plus 1 is equal to 8 minute 4 seconds. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 8 minute 4 second. Clear, students? Now see the question number 3. Question number 3 has been given. Tina starts studying at 3:30 p.m. She studied for 1 hour 20 minutes. At what time did Tina stop studying? So here you can see about that what has been given. So here you write given has been given starting time. Okay, क्या दिया हुआ है? Starting time is equal to 3:30 p.m. and another thing has been given, duration is equal to 1 hour 20 minutes. Duration कितना दिया? 1 hour 20 minutes. So you will find out, to find फिनिशिंग टाइम. क्या फाइंड आउट करना है आपको? फिनिशिंग टाइम फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फिनिशिंग टाइम? फिनिशिंग टाइम इज इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन. आप स्टार्टिंग टाइम एंड ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे. एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम? 3:30 p.m. एंड द ड्यूरेशन इज 1 hour 20 minutes. Okay, so now you will add in parts, add the hours and minutes in parts. आगे की टाइमिंग निकालनी. सो हियर यू विल राइट बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. ओके, आप आगे की तरफ गिन के इसको काउंट करोगे. सो हियर यू कैन सी अबाउट दैट. इन स्टेप 1 यू कैन सी 3:30 p.m. प्लस आर हैज बीन गिवन 1. सो 3:30 p.m. आर जब आप इसमें 1 hour ऐड करेंगे, सो यू विल गॉट 4:30 p.m. ओके, देन आफ्टर दैट इन स्टेप 2 you will write you have got 4:30 p.m. and here you can see it here. How many minutes has been given here? 20 minutes. So you will add 20 minutes here. So 4:30 p.m. plus 20 minutes is equal to 4:50 p.m. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to Tina stop studying at 4:50 p.m. Clear, students? So your B part is also finished. Now I will start C part of worksheet. So this is the C part. In C part, question number 1 has been given convert.
in this A part has been given 145 minutes to hours and minutes. आपको 145 minutes को hours में और minute में convert करना है. So students, you know about that 1 hour is equal to 60 minutes. Okay. So आप इसे ये भी कह सकते हैं और 60 minutes is equal to 1 hour. हम इसको यूनिटरी मेथड के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं. सो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एंड यू नो अबाउट द यूनिटरी मेथड. 1 की वैल्यू पहले निकालते हैं हम. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 आवर. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन हैज बीन गिवन, व्हाट इज द टाइम हैज बीन गिवन, टोटल मिनट्स हैज बीन गिवन 145 minutes. So therefore 145 minutes is equal to 1 into 145 divided by 60 is equal to 145 upon 60 hours. So now we will convert it with the division. So look here, how can we divide? In the rough column you will divide 60 से आप 145 में divide करेंगे. So you will go, it will be divided by 2 times 120 and the remaining number is 25. So जो आपका question आया that is hours and remainder is minutes. Okay. So now you will write is equal to 2 hours 25 minutes. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 2 hours 25 minutes. Clear students? Now students, see the question number 2. It has been given solve. A part has been given 5 years 10 months minus 2 years 11 months. So look here, how can we solve here? Here we will write the again 5 year 10 months minus 2 years 11 months. So you can see it here students. 5 years में से 2 years subtract हो जाएगा, but 10 months से 11 months subtract नहीं होगा. So here you will write since there are not enough months to subtract. So regroup 1 year to 12 months. So 1 year को 12 months में convert करेंगे and which thing, that point. It means 5 years 10 months is equal to, हम इसको क्या कह सकते हैं, 4 years and हमने क्या किया 5 years को हम convert करें. So 4 years 12 months. 4 year 12 months is also called 5 years plus 10 months. So you can see it here. 12 months has been given and 10 months has been given. So दोनों similar unit है. So you will add. So your total will be 4 years 22 months. Okay. Now you will easily subtract. It means 4 years 22 months minus 2 years 11 months. So when will you subtract 4 years से 2 years subtract होंगे, इसके आएगा 2 years. Then 22 months से आप 11 months subtract करेंगे, then remaining months are 11 months. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 2 years 11 months. Clear students? Now students, see the question number 3rd. Question number 3rd has been given. Seema's summer vacation starts on 12th May and the school reopen on 3rd July. Okay. She wants to go for a summer camp that is 55 days long. Will Seema be able to complete her camp in the holidays? आपको ये कह रहा है कि सीमा की समर वेकेशन 12 मई से स्टार्ट हो रही है और जो स्कूल रीओपन होगा वो 3rd जुलाई से होगा एंड द ड्यूरेशन ऑफ द समर वेकेशन इज 55 डेज. तो ये आपसे पूछ रहा है क्या सीमा अपना समर वेकेशंस जो है सीमा क्या अपनी कैंप हॉलीडेज के टाइम में कंप्लीट कर सकती है. कैंप जो है समर कैंप 55 डेज का. सो हियर यू कैन सी अबाउट दैट इट हैज बीन गिवन अबाउट द हियर यू लेट गिवन starting time has been given. The starting time is equal to 12th May. Duration of camp has been given. Duration is equal to 55 days. Okay. And the school reopening time, here you will write it here also that school reopens on 3rd July. Okay. So here you will find out first the
फिनिशिंग टाइम, फिनिशिंग डेट, फिनिशिंग डेट मीन्स 12th मई से आपको 55 डेज काउंट करने हैं, क्या होंगे? सो हियर यू राइट फिनिशिंग डेट, not time, here I have written time by mistake, here write date. Okay, so finishing date, you know about the formula regarding the finishing date. Finishing date is equal to starting date plus duration. हम स्टार्टिंग डेज में ड्यूरेशन को ऐड कर देते हैं. सो व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट? दैट इज 12th में एंड द ड्यूरेशन इज 55 days. Okay, so now we will add it but in parts. So here we'll write add the days in parts by counting forward. अब आगे की समय में जाते हुए काउंटिंग करेंगे. ओके, सो लुक हियर हाउ. स्टेप 1, स्टार्टिंग डे इज 12th मई. सो मई के मंथ में ड्यूरेशन में देखेंगे कितने दिन हमारे होते हैं. तो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द कैलेंडर फॉर 3 months, मई, जून एंड जुलाई. सो फर्स्ट वी विल काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम द May month. So vacations has been started from 12th. So here you will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It means 12th May plus 20 days. Then you will got 31st May. आपको डेट क्या मिलेगा? 31st May. Okay. Now listen. Step 2. Step 2, first you will count out the date. What are the total days? 55 days. So 55 days में आपके कितने डेज हो चुके? 20 डेज आपके जा चुके हैं. So 55 डेज माइनस 20 डेज इज इक्वल टू 55 डेज में आप 20 डेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन आफ्टर दैट यू विल गॉट 35 डेज. ओके, सो नाउ इन स्टेप 3 you will count it here. 31st May. मई के बाद क्या है? जून. तो अब जून के मंथ्स तक लेंगे. सो यू नो अबाउट दैट देयर आर 30 days इन जून मंथ्स. सो हियर यू विल ऐड 30 days. देन आपको क्या मिलेगा? 30th जून. ओके, नाउ 30th जून. सो स्टेप 4 में आप क्या देखेंगे? हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग टिल नाउ. सो यू नो अबाउट दैट रिमेनिंग डेज आर 35. यहाँ 35 डेज आपके रिमेनिंग बचे थे. इसमें हमारे क्या 30 डेज हो चुके हैं कवर अप स्टेप 3 में. सो रिमेनिंग डेज इक्वल टू 5 days. ओके, देन स्टेप 5. मई हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जून में भी पूरा फिनिश हो गया. अब हम स्टेप 5 में क्या देखेंगे? जुलाई. कब से? 30th जून प्लस 5 days. देन 5 days मीन्स 5th July. 5th July. So you can see it here. We have got the day 5th July, and in the question it has been given about that school will reopen on 3rd July. स्कूल हमारा कब ओपन हो रहा है? 3rd July में. So you can see it here in the question. It has been asked about that. Will Seema be able to complete her camp in the holidays? क्या सीमा अपने कैंप को हॉलीडेज की ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकती है? सो नो, बिकॉज 3rd जुलाई को स्कूल खुल रहा है एंड 5th जुलाई को इसका 35 डेज कैंप के फिनिश होंगे. सॉरी 55 डेज कैंप के फिनिश होंगे. सो इट मीन्स यू कैन चेक अबाउट इट हाउ मेनी डेज टिल रीओपनिंग डेट ऑफ द स्कूल. सो हियर यू कैन सी 20 डेज वर मे. ओके, जून में 30, 50 हो गया. 50 प्लस 1, 51 एंड 52. क्योंकि 53 डेज में यानी 3rd जुलाई में यानी 53 डे में स्कूल रीओपन हो रहा है. सो यू विल राइट द आंसर हियर. यू विल राइट 1 point more. Therefore total holidays till 2nd जुलाई, क्योंकि 3rd जुलाई को हमारा ओपन हो रहा है स्कूल. सो यू नो अबाउट दैट 20 डेज हमारे किस में बचे? मई में. देन जून में 30th डेज एंड जुलाई में 2 days. सो इक्वल टू 52 days. ओके, सो हियर यू विल राइट नो सीमा will not be completed
completed her summer camp because the summer holidays are 52 days long. हमारे हॉलीडे कितने 52 डेज के एंड द समर कैंप इज 55 days. It has been given in the question. Okay, so that is your answer, students. Your chapter 11 time, speed and temperature has been finished now. Okay, so now students, I will start chapter 8 geometry. This is the last chapter of your PT2 syllabus. Okay, so look and listen carefully about this chapter. Before starting the exercise 1, I want to tell about some points here. Topic will be related from your angles. What is angles? When two rays have a common end point, they form an angle. जब हमारी दो रेखाएं, दो लाइन एक कॉमन एंड पॉइंट बनाती हैं, सो हम उसको क्या कहते हैं? एंगल. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन गिवन हियर. So one line has been given here and one line has been given here. So ये क्या कॉमन एंड पॉइंट बना रही है, दोनों लाइन कहाँ फिनिश हो रही है यहाँ पर. So that is the angle. और you can see that boy is showing their health, their body. So at that time इनकी जहाँ आर्म्स हमारी मूव हो रही है, फोल्ड हो रही है, so यहाँ फोल्ड होने पर जो ये बन रहा है, ये एंगल है. इधर भी लेफ्ट एंड राइट बोथ हैंड्स में ये जो आर्म्स इसकी फोल्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल्स ऑल्सो. ओके, so you can write about it also. What is angle? When two rays have a common end point, comma, they form an angle. Okay, it is marked by a curve. हम इसे किससे मार्क करते हैं? कर्व से. यू कैन सी इट हियर. यहाँ पर हमारा ये एंगल बन रहा था, तो हमने किससे मार्क किया? कर्व से. हियर ऑल्सो एंड इन दिस डायग्राम ऑल्सो कर्व से हमने इसे मार्क किया. ओके, सो दिस इज द फिगर दैट आई हैव ड्रॉन हियर. यू कैन सी ऑल्सो इट. Here one ray has been going here and a second ray here है, यानी कि एक रे ये जा रही है, सेकंड रे ये जा रही है. यहाँ पर क्या हमने इसको कर्व से मार्क कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंगल. इफ यू वांट टू पुट द नेम ऑफ दैट एंगल, सो यू कैन ऑल्सो पुट हियर. ए हमने इस पॉइंट का नाम दिया, बी इधर दिया, सी इधर दिया. सो एट दैट टाइम इफ यू वांट टू टेल द नेम ऑफ हियर, सो यू कैन टेल एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए. रिमेंबर बेटा, जिस एंगल को आपको बताना है, आपको उसको नाम बताते समय सेंटर में रखना होगा. ओके, सो यानी ए बी सी आप कह सकते हैं या सी बी ए कह सकते हैं. आपने देखा होगा हम बी को सेंटर में रख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एंगल्स. क्लियर स्टूडेंट? नाउ सी अबाउट द पार्ट्स ऑफ एन एंगल. हमारे एंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? ओके, सो दिस एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज बी ए एंड बी सी. यहाँ एक आपको एंगल बना हुआ दे रहा है जिसमें हमारी दो लाइनें हैं, बी ए है और बी सी है. ओके, सो द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स. यानी कि ऐसी दो रेज जो हमारे एंगल को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, हम उन्हें आर्म कहते हैं. जैसे क्या ए और बी, एक रे ये है, सेकेंड रे इज बी और सी. सो ए बी इज ऑल्सो आर्म एंड बी सी इज ऑल्सो आर्म. ठीक है, यानी ए बी सी आर आर्म्स. ओके, एंड वर्टेक्स क्या है? B point is the vertex, so you can see it here. The common end point of the rays forming an angle is called the vertex of the angle. यानी क्या कॉमन एंड पॉइंट, ए और बी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है? बी है, एंड बी और सी का कॉमन एंड पॉइंट कहाँ आ रहा था? बी पर आ रहा था. सो एट दैट टाइम जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट होगा, यानी जो दोनों रेस का हमारा एंडिंग पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. सो ए और बी का कॉमन एंड पॉइंट बी है एंड बी एंड सी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है? बी है. सो बी पॉइंट क्या है? वर्टेक्स. So clear? You can see about that the angle is called angle ABC और angle CBA. जो चीज अभी हमने आपको बताई, क्या लिखा है? While naming an angle
द मिडिल लेटर इज ऑलवेज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि आपको क्या मिडिल में आपको वर्टेक्स ही रखना है, जहां पर हमारा कॉमन एंड पॉइंट था आपको उसको सेंटर में ही रखना है। आप इस एंगल को क्या ए बी सी भी कह सकते हो और इसको सी बी ए भी कह सकते हो, बट हमारा बी क्या रहेगा सेंटर में। यू कैन सी हियर अबाउट दैट बी यहां भी सेंटर में, बी यहां भी सेंटर में, एंड एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज रिटन एज एंगल, ये एंगल का सिंबल है ए बी सी और एंगल सी बी ए। क्लियर? Here you will write the note also. Note while naming an angle, comma, the middle letter is always the vertex of the एंगल। ओके, सो देयरफॉर इसको भी हम लिख दे रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, ये एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। आप इसे एंगल ए बी सी भी कह सकते हो और सी बी ए भी कह सकते हो। आई थिंक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी अबाउट इट, देयर आर सम एग्जांपल्स दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक। इन अ प्लेन शेप टू साइड्स मीट एट अ कॉर्नर फॉर्म अ एंगल, यानी कि अगर किसी प्लेन शेप पर या प्लेन शेप जो भी हो डायग्राम पर अगर दो साइड्स के आपस में एक कॉर्नर पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज 4 एंगल्स, अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। सो हियर इट हैज बीन गिवन, हियर स्क्वायर है, फर्स्ट लाइन दिस एंड दिस, ये टैली हो रही है, सो ये एंगल हो गया। देन अगेन लोअर लाइन एंड दैट लाइन हैज बीन टैली, सो इसके चारों कॉर्नर क्या है, हमारे एंगल हैं ये। देन आप ट्रायंगल में भी देख सकते हो, ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड्स आर जॉइंट हियर, कॉर्नर साइड्स क्या हो रही हैं, मीट कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड एंगल्स ऑल्सो। और यू कैन ऑल्सो पुट इट इन योर एग्जाम्पल ऑल्सो एज लाइक हियर यू कैन सी दिस इज द हाउस, सो यू कैन सी हियर दैट हैज बीन मार्क एज लाइक, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक मकान बना हुआ है, सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 लाइन्स क्या हमारी ऐड हो रही है, 2 साइड्स ऐड हो रही है, सो यहाँ भी एंगल है, विंडोज में भी है, डोर्स में भी है, अपर साइड में भी है, एंड ये चिमनी में भी है। सेम थिंग विल बी रिलेटेड फ्रॉम दैट टाइप ऑफ थिंग हियर ऑल्सो, दैट इज द काइट। काइट में भी हमारे क्या है, एंगल्स हैं। क्लियर है? आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंगल एंड हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ द एंगल्स? नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर, this is your exercise 1 and question number 1 has been given, put a tick on the pairs of rays that form an angle, name the angles A to D, यानी A B C D 4 पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं, जिसमें A पार्ट के क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया है। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट डायग्राम, आपको ये बताना है कि टिक लगाना है पेयर्स ऑफ रेज दैट फॉर्म अ एंगल, रेज ऐसी आपको बतानी है जो यहाँ पर क्या एंगल्स को क्रिएट कर रहे हो। सो हियर यू कैन सी X, Y and Z has been given. X and Y and Z both rays has cut or their end point is Y, यानी X और Y का हमारा end point क्या Y है और Y और Z का end point क्या हमारा Y है। So it means both rays has been cut in any mid point, एक दूसरे को क्या ये कट कर रहे हैं। इट मींस आर्म्स हमारी जो है इनके, आप इसको क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। हमने आपको इसमें अभी बताया था, दीज आर कॉल्ड आर्म्स। आर्म ये है, दैट इज ऑल्सो आर्म, एंड दिस इज वर्टेक्स, दिस इज आर्म, ओके, एंड दिस इज वर्टेक्स। यू कैन ऑल्सो राइट इट हियर, ओके, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है। सो सेम थिंग विल बी हियर ऑल्सो, दीज आर द आर्म्स एक्स वाई एंड वाई जेड, and it has been cut in the y point, it means that is the vertex, so it means angle has been created here, okay, so it means that is the angle. So here you write here x y and y z rays form an angle, and what is the name of the angle? It has been also asked, angle एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। इट मीन्स जहां ही आपका एंगल फॉर्म करेगा आपको उसके नाम लिखने हैं, एक्स वाई जेड, और जेड वाई एक्स भी आप लिख सकते हैं, बट वर्टेक्स को आपको क्या सेंटर में रखना है, जहां भी हमारी 2 लाइन कट रही हैं, 2 रेज हमारी मिल रही हैं, मिड पॉइंट, कट पॉइंट, दैट विल बी पुट ऑन योर सेंटर पॉइंट, ओके। सो क्लियर स्टूडेंट्स?
Now see the B part. In B part, this is the diagram has been given. AB, that is the one line, and CD, that is the one line. And you can see it here. इनका कोई common mid point या common cut point, end point नहीं है. So it means that has not formed the angle. So here you will write here 2 rays AB and CD have no common end point, therefore it has not formed an angle. Clear, students? So इसका C part and D part I will start in the next class. In the mean duration, if you have any doubt, then students you can also ask the query with me. Okay.